Very good morning to all my dear students. Let's go with the disclaimer. Someone please start the projector. Yes, guys.
Yes, guys. So now in the yesterday's session, you may join through your mobile if you guys are not interested to start the projector. You may join through your mobile. I'm just going to give this short recap. Thank you. Outer. Request online students please be online. Start very shortly. તમારામાં ચેન્જ 21 તારીખ વાળો વચ્ચે આવશે. ચલો now okay. So yesterday we have done with the nuance of strategy implementation. We have done with the basics of strategy formulation and strategy implementation with the heading of operationalizing the strategy. Planning the work considered can be strategy formulation, while working on plan can be considered as strategy implementation. This is the basic difference between strategy formulation and strategy implementation, or you can say the execution. These are the things that we have done in the last session. Now, these are the characteristics of good strategy executions. Who are the strategy implementers? Goals of strategy implementation process. Now, the next topic, that is functional strategies, or you can say the functional level strategy. It includes HR, marketing, finance, production, IT, R&D, logistics, supply, and so on. These all departmental strategies can be considered as functional level strategy, and accordingly you are supposed to execute the same in your company. So let's start with the basics. Functional level strategy. Functional level strategy is a plan of action to strengthen an organization's functional and organizational resources, as well as its coordination abilities in order to create core competencies. Now, core competencies are those who will help you to be there in the market, who will help you to be your competitors, who will help you to be on the top. And this is how you can create your X factor, your great caliber in the market, in the industry. And later on, you could be the movers and shakers of the market. You could be the market leader actually. So, core competencies develop करने के लिए आपको functional strategy जो है उसको बढ़िया तरीके से implement करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से execute करना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से formulate करना पड़ेगा, so that the execution of those functional level strategies can create core competencies in your business, in your industry. Now, he क्यों जरूरी? The most important aspect is strengthen an
organizational functional policies and resources with the help of coordination. अब ये जरूरी क्यों है ये मैं आपको बताऊं। जैसे कि आज आपकी एक कंपनी है तो उसमें अलग-अलग कई सारे डिपार्टमेंट जैसे कि HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, IT, R&D, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई एंड ऑल, कई सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो आपकी कंपनी में है। सो नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा है मार्केट में, then what will be the situation? आपके पास पैसे नहीं आएंगे क्योंकि सेल्स नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आपका रोलिंग जो है वो नीचे चलेगा, आपकी साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। So that's why मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सेल्स के ऊपर रखना है, सबसे ज्यादा फोकस जो है वो ब्रांडिंग के ऊपर रखना है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस के ऊपर रखना है, एंड सो एंड दिस इज हाउ दे कैन इंक्रीज द सेल्स। एंड सेल्स जितना इंक्रीज होगा उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, जितनी रेवेन्यू जनरेट होगी उतना ही ज्यादा कंपनी को फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। नाउ दूसरी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं जहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। जैसे कि आपका प्रोडक्शन जो है वो 100 टन का हुआ है, मार्केटिंग वाले 150 टन का ऑर्डर लेके आ गए। नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन? सिचुएशन क्या होगी? मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, मार्केटिंग वालों ने बढ़िया काम किया तो अब प्रोडक्शन वालों को बढ़िया काम करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड जो है ऑर्डर जो है 150 टन का आ गया, प्रोडक्शन वालों को कैसे भी करके 150 टन का प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो मीट करना ही पड़ेगा। So now production department को अपना प्रोडक्शन जो है वो 150 टन करना ही पड़ेगा। Now अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना प्रोडक्शन जो है 150 टन करना है तो मटेरियल भी चाहिए, वो मटेरियल होगा तभी जाकर प्रोडक्शन होगा। तो परचेज डिपार्टमेंट को उसे जो भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट जो है वो 200 टन रॉ मटेरियल दे देता है तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो परचेज डिपार्टमेंट के पास पैसे आने चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सभी पेमेंट के रिलेटेड क्वेरी जो है वो हैंडल करता है। अभी फाइनेंस के पास पैसे आ गए तो वो परचेज वालों को दे देगा, परचेज वालों ने जहां से प्रोडक्ट परचेज किया उसको दे देगा, एंड अकॉर्डिंगली एक पूरी साइकिल जो है वो चलती रहेगी। एट सेम टाइम जब आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो वहां पे आपको मैन पावर भी ज्यादा चाहिए, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो भी वहां पे इंक्लूड होगा, उसको वहां पे ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। And this is how actually each and every department, each and every functional areas are somehow connected with each other. It's like a chain of cycle. उसमें से कोई एक भी निकल जाएगा तो आपकी पूरी चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी या तो आपकी साइकिल जो है वो नहीं चलेगी। And that's why functional, departmental policies and strategies are most important. आज आपका टारगेट है मार्केट में लो कॉस्ट लीडर बनना कि भाई मैं सबसे कम दाम में, जैसे कि पार्ले जी बिस्किट्स है, जैसे कि 2 रुपए वाली पेन आती है, समथिंग लाइक दैट। तो आपका टारगेट है मार्केट में कॉस्ट लीडर बनना, सबसे कम रेट में अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करना। बट उसके लिए अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही थकल पंचा वाली स्ट्रेटेजी के साथ जाएगा तो नहीं चलेगा। वहां पे एकदम प्रिसाइज जो है, एकदम फोकस जो है, विजिलेंट जो है, अजाइल जो है, ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए, तभी जाके कंपनी अपनी ओवरऑल जो कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी है वो अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। Then functional strategies like
marketing, finance, R&D, operations, purchasing, logistics, HR, IT, and so on. These are the functional level strategies. ये सभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस में नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में लिखा है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी. आप देख सकते हो, 2-3 नाम लिखे हैं, एचआर, मार्केटिंग, फिनेंस, बट फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी की जब बात होती है तो फुल डिश जो है वो सर्व की जाए. ये सभी स्ट्रेटेजी जो है वो हम समझेंगे. इट्स क्वाइट इजी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, इट्स क्वाइट इजी. तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजीज. ठीक है, तो ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है, 1 बाय 1 करके हम इसको समझेंगे. सभी है ऑलमोस्ट, यहाँ पे 6 और 7 जो है ये इसमें है, और बाकी जो नहीं है वो मैं आपको ओरली एक्सप्लेन करूंगा. इट्स क्वाइट इजी. जैसे कि मार्केटिंग है तो हाउ यू आर गोइंग टू मार्केटाइज योरसेल्फ, एचआर है तो हाउ यू आर गोइंग टू रिक्रूट, हायर एंड फायरिंग. सो इट विल बी अ काइंड ऑफ बेसिक्स ओनली, बट यस देन आल्सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, क्योंकि अगर फंक्शनल लेवल जो है वो बढ़िया चलेगा तभी जाके आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी जो है वो अचीव हो पाएगी. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट. नाउ basic market product strategies, or you can say the marketing strategies. We'll start with this one, marketing strategies, but in the next session. मैंने आपको इजराइल का वीडियो दिखाया है, इजराइल वीडियो. ओके, सो आई शो इट टू यू. आपको मोबाइल से ज्वाइन होना पड़ेगा. इजराइल अभी जो रिसेंट सिचुएशन जो है अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए, अभी आपको मालूम है अफगानिस्तान में क्या हुआ है. ओके, तो एक टाइम पे यही सिचुएशन में इजराइल भी था, बट इजराइल वहां से बढ़िया तरीके से बाउंस बैक किया एंड एक वीक में उसने 6 कंट्री को हराया. विवेक बिंद्रा का ही वीडियो है, उसका ही केस स्टडी है, बढ़िया है. आप वो देखिए, हाउ दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रिसाइजली. दैट विल हेल्प यू टू बी ऑन टॉप. So tomorrow we'll start with the marketing strategy. Right now we'll share one video. Please be online. એમાં ચાલુ કરીશ ને તો આમાં જે ઓનલાઈન છે ને એ લોકોનો અવાજ નહીં આવે. આમાં સાવ નાનું સ્પીકર હશે તો અવાજ નહીં આવે. Please be online. Now, I request you to join through your Google Classroom. Those who are offline, please join through your classroom. दृष्टिकोण से इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं. पॉपुलेशन इतनी कम कि हमारे मौनी अमावस्या पे जो कुंभ मेला होता है, 4-5 इजराइल तो हम 2 घंटे में नहला देते हैं. लेकिन दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बनाए,
टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स के मामले में पूरी दुनिया को पीछे किया है इसने। छोटी आबादी के अंदर इतनी ताकत और ऐसा देखिए देश है, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते इजराइल से। अगर इजराइल का कोई, आपका स्वागत है, मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा इजराइल देश की, एकमात्र यहूदी देश इस पृथ्वी पे भौगोलिक दृष्टिकोण से इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं। पॉपुलेशन इतनी कम कि हमारे मौनी अमावस्या पे जो कुंभ मेला होता है, 4-5 इजराइल तो हम 2 घंटे में नहला देते हैं। लेकिन दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश बना, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप के मामले में पूरी दुनिया को पीछे किया है इसने। छोटी आबादी के अंदर इतनी ताकत और ऐसा देखिए देश है, आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते इजराइल से। अगर इजराइल का कोई शत्रु है, एक तो बचेगा नहीं वो जिंदा, उसको उखाड़ खत्म कर देगा, नेस्त तो नाबूद तबाह कर देगा। इजराइल का ये एक नीति है। उसकी क्या नीति है? अगर आप मेरे दुश्मन और आपने मेरे एक नागरिक को मारा, आपके देश में घुस के 10 को मारूंगा, जो कर सकते हो कर लेना। इजराइल को दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना जाता है। इसकी सुरक्षा के पीछे कारण क्या है? इनकी खुफिया एजेंसी है मोसाद। मोसाद ऐसी खतरनाक इनकी एजेंसी है, पूरी दुनिया डरती है इनकी इंटेलिजेंस से। जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर आप उंगली तो उठा दो उनके ऊपर, 1972 का म्यूनिक ओलंपिक की घटना थी जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने इनके 11 खिलाड़ियों को म्यूनिक में मार दिया था। बस उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने एक एक खिलाड़ी के घर जाके उनके माँ बाप रिश्तेदारों को जाकर के वचन दिया था कि इस मौत का बदला लिया जाएगा। पहले तो 2 दिन में अगले 2000 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उन्होंने मारा और उसके बाद वहां रुके नहीं, ढूंढे वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने 11 खिलाड़ियों को मारा। और उसके बाद दुनिया भर में घूम घूम के अगले 16 साल तक, 1972 से 1988 तक, एक एक घर में घुस घुस के, किसी भी देश में क्यों ना हो, उखाड़ के निकाल खत्म किया। ये है इनकी खुफिया एजेंसी, इसलिए ये देश इतना सुरक्षित हो गया है। 1976 में भी युगांडा के अंदर कुछ आतंकवादियों ने इनके 54 नागरिकों को बंधक बना लिया था। और जब इन्होंने बंधक बनाया, इन्होंने, इजराइल ने कोई नेगोशिएशन नहीं की, ये चुप रहे, चुपचाप जाकर के युगांडा देश में घुसे और घुस करके अपने सारे नागरिकों को रातों रात छुड़ा के बाहर निकाल के ले आए। ये जो इनकी एजेंसी है, बेसिकली क्या करते हैं, इनके 85 लाख पॉपुलेशन वाले देश में 35 लाख लोग तो आर्मी के अंदर है। इनके देश में हर आदमी को, हर औरत को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, 3 साल की कम से कम। औरत होगी 2 साल, आदमी होगा 3 साल, आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है। यहाँ की औरतें भी जेब में हर जगह अपने पास बंदूकें, अपने पास सारे हथियार लेके चलते हैं। एक्चुअली अगर आप पीछे जाए ना, 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी गवर्नमेंट हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन यहूदियों को जान से मार दिया था। गैस की पाइपलाइन में जिंदा जला के खत्म करके मार दिया था। और वहीं उन यहूदियों ने उसके बाद में अपने अलग देश की डिमांड करी थी और उसके बाद फिलिस्तीन से अलग हुआ था। तो उसी समय से आसपास के सारे मुसलमान देश इसके अगेंस्ट रहा करते थे। और वहीं पे इजराइल को खत्म करने के लिए इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में एक समझौता हो गया। समझौता था कि अगर इजराइल द्वारा हमारे मुल्क पे हमला हुआ तो दूसरा मुल्क पहले मुल्क का साथ देगा। वही हुआ। 1967 के जून में इजराइल इजिप्ट की सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और जल्दी ये सारे अरब मुल्कों तक फैल गया। इसमें केवल अब इजिप्ट और जॉर्डन नहीं रह गए थे इजराइल के खिलाफ। इन्होंने इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, अल्जीरिया, सारे देशों को साथ में लिया। इजराइल को खत्म करने के लिए इन्होंने जॉर्डन को अपना बेस बनाया। जॉर्डन में आर्मी का बेस बना और इस वॉर को जून वॉर का नाम दिया गया। पर इससे पहले कि ये इजराइल पे अटैक करते, 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 4000 फाइटर जेट को जमीन पे ही उड़ा दिया। इससे सारे दुश्मन देश घबरा गए और पूरा जंग 6 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इजराइल जानता था कि अगर उसको जीतना है तो पहले हमला करना ही होगा। बस इजराइल ने तुरंत जॉर्डन के आर्मी बेस पे जितने भी लड़ाकू विमान थे उन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। मामला रुका नहीं, अरब मुल्कों ने अपनी सारी फौज सीमा पे नीचे लगा दी और जमीनी लड़ाई शुरू कर दी। न केवल युद्ध जीते बल्कि एक्स्ट्रा गाजा पट्टी भी अपने नाम कर ली। जब ये एक्चुअली देश स्वतंत्र हुआ था, जब ये फिलिस्तीन से अलग हुआ था, तब छोटा था, लेकिन लोगों ने इस पे युद्ध किया, अटैक किया। ये अटैक में उनको मार के उखाड़ता और फिर उनकी कोई जमीन हथियार लेता। धीरे धीरे आज इजराइल का साइज जितना था शुरू में उससे बड़ा हो गया है। इतना आर्मी इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया इंटरनली। मार खा खा के पिट पिट के इन्होंने शुरुआत में इतनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करी कि आज पूरी दुनिया इनसे डरती है। आज इन्होंने इतने एम्यूनिशन तैयार कर लिए कि न केवल खुद यूज करते बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं। आज ये दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में आमतौर एम्यूनिशन में आ गया है। इंडिया इसका वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है। इंडिया को काफी हथियार ये आकर के दे रहा है। आप जानते हैं नेतन्याहू के साथ मोदी की दोस्ती, ये दोस्ती का कारण एक्चुअली इसके पीछे बिजनेस भी होता है। हैरान न हो तो एक बात बताऊं, ये एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से अपने पूरे देश को कवर कर लिया। ये जानता है कि मेरे आसपास बहुत शत्रु हैं। आप इस पे कोई मिसाइल छोड़ तो दो,
आप इस पर कोई रॉकेट किसी प्रकार का अटैक कर तो दो, हर चीज हवा में ही खत्म हो जाएगी, इनकी जमीन को छू ही नहीं सकती। और वैसे इन्होंने उसकी अलग तैयारी ऐसे कर रखी थी, बंकर बना दिए पूरे देश में जगह जगह। जैसे ही कोई युद्ध होगा एक सायरन बज जाएगा पूरे देश में, लोगों के पास बंकर होंगे, ऑफिस में बंकर, घर में बंकर, बिल्डिंग, मॉल, कहीं भी चले जाओ, खेलने का स्टेडियम होगा वहां भी बंकर होंगे। ऐसे क्या उसके नीचे चले जाओ, कोई आपको खत्म ही नहीं कर सकता। होटल्स भी ऐसे बना दिए, दुनिया के सबसे सुरक्षित होटल है जहां नरेंद्र मोदी रुकते हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति सारे आके रुकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आके रुके थे। ये ऐसा होटल है कि इसकी बिल्डिंग को आप किसी भी बम से खत्म कर दो, उड़ा दो, पर कमरे के अंदर कुछ नहीं होगा। कुछ कमरे इन लोगों ने ऐसे बना दिए हैं कि वो बिल्ड किसी भी प्रकार के बॉम्ब से भी उखाड़ा नहीं जा सकता। इतनी तैयारी ये लोग इंटरनली कर लेते हैं, यहाँ रुकते नहीं। इनकी खास बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, पहले खुद यूज करते हैं, फिर पूरी दुनिया में खास दोस्त हैं उनको जाके दे आते हैं। और तो और जो उनकी गाजा पट्टी है ना, गाजा स्ट्रिप, वहां से कोई अटैक ना कर दे उसके लिए उन्होंने सी बैरियर तैयार कर दिया है। इतना लंबा कई किलोमीटर का सी बैरियर हाइट कर लिया है, कोई तंगी ना कर सके। आर्मी के जवान कम पड़ जाए तो रोबोट तैयार कर दिए हैं कि रोबोट्स पे युद्ध लड़ सके। एक्चुअली आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने अनस्टेबल एनवायरमेंट में, इतना जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरमेंट, उसके बावजूद ये खड़ा कैसे हुआ? आसपास अनस्टेबिलिटी थी पॉलिटिकल, लेकिन अंदर इनकी अपनी पॉलिटिकल सरकार बहुत स्टेबल थी। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी बोलते हैं कि इजराइल इतनी सारी आसपास तकलीफों के बावजूद सबसे स्टेबल देशों में से है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट जायंट आज यहां के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नैस्डैक में। आप देखिए लिस्टेड कंपनी में इजराइल की कंपनी चाइना के सबसे ज्यादा है। अगर आप जापान की कंपनी सारी जोड़ लें, इंडिया की जोड़ लें, जर्मनी की जोड़ लें, साउथ कोरिया की जोड़ लें, फ्रांस, यूके सब जोड़ लें, वो भी नैस्डैक में इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इजराइल की टेक इनोवेशन का स्टार्टअप, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ मिडिल ईस्ट बोला जाता है। आज सबसे ज्यादा तेजी के साथ टेक्नोलॉजिकल हब और स्टार्टअप यहां बन रहे हैं, सबसे तेजी से इनोवेशन हुए। कोई भी दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ले लो, उसका R&D सेंटर अगर इनको विश्वास है तो इजराइल पे है। इनको इजराइल की सरकार पे, इजराइल की मैन पावर पे, इजराइल की पॉलिसीज पे, सारी अमेरिकन सिलिकॉन वैली की कंपनीज को बहुत विश्वास है। बैक ऑफिस सेटअप यहां बनाना शुरू किया। इन्होंने किया क्या, एक इंटरनल संस्था बना दी इसके लिए, इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी। उसका एक ही काम है, 4.5% अपने जीडीपी का हिस्सा इनोवेशन को बिल्ड करने, रिसर्च को बिल्ड करने में डाल देते हैं। ये अमेरिका ही है पूरी दुनिया में जो इतना पैसा रिसर्च और इनोवेशन में डाल रहा है। उसके बाद नंबर 2 वर्ल्ड के अंदर इजराइल है। जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा कोई नहीं डालता है। यही तो कारण है। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज कहां बने, वो माइक्रोसॉफ्ट यूएस ने नहीं बनाया, माइक्रोसॉफ्ट इजराइल ने बनाए। सिस्को ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी यही तैयार करी। मोटरोला का जो फोन हुआ करता था ना, पहले दुनिया में फोन आते थे, वो ईंट जैसे फोन आज तक आप इस्तेमाल कर रहे होते अगर मोटरोला ने इजराइल के अंदर बैठ करके उसको इनोवेशन बिल्ड नहीं किया होता। पहली बार फोन का साइज जो एक्चुअली छोटा हुआ दुनिया में यही हुआ। यूएसबी पोर्ट और यूएसबी जिससे आप आज ट्रांसफर भी करते हैं, जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव भी और यूएसबी पोर्ट भी कहां बने, पहली बार इजराइल में बने थे। आईबीएम को जब दुनिया की सबसे बड़ी R&D फैसिलिटी बनानी थी अमेरिका के बाहर, तो उसको इजराइल ही पसंद आया। दुनिया के सबसे ज्यादा बायोटेक स्टार्टअप इजराइल में ही हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पहली बार इजराइल में बनी थी। पहला कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर 1979 में इजराइल में ही बनाया गया था। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको आप VoIP बोलते हैं, फोन पे बात किया करते थे, वो टेक्नोलॉजी पहले इजराइल में ही आई थी। दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन राउटर सिस्को के द्वारा इजरायली इंजीनियरों ने तैयार किया था। एक्चुअली ये जो छोटा सा देश है ना, यही इनकी कमजोरी नहीं, इनकी ताकत बन गया। कैसे ताकत बन गया? क्योंकि देश छोटा है, कुछ भी स्केल करके, क्योंकि अपने देश में ज्यादा बेच नहीं सकते, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, मार्केट साइज नहीं है, तुरंत हुआ यही। क्योंकि जब ये निकल के पूरी दुनिया में जाने की आदत पड़ गई तो दुनिया का अपने देश में क्या है, अपने देश में बहुत आदमी, बहुत जनता है, जो बनाएगा अपने गल्ले पे यही बैठ के बेचता रहेगा, लोग आके लेते रहेंगे। इजराइल में बड़ी दिक्कत थी है जी, इजराइल है छोटा सा, तो वहां से इनका ग्लोबल माइंडसेट बिल्ड हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट, ग्लोबल स्टार्टअप्स को इनके प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया अपने देश में और बोला कि मिल करके यहाँ पे कंपनी खरीदो, मिल करके टेक्नोलॉजी बिल्ड करो, मिल करके इन्वेस्टमेंट करो। तो कल्चर आ गया। उससे इन्होंने एक मॉडल चालू किया, जिस मॉडल को ग्लोबली क्या बोलते हैं, ICDS मॉडल। ICDS मॉडल को ध्यान से समझिएगा। पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम क्या चल रही है मार्केट में। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ये अपनी पूरी मैन पावर को, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जो R&D सेंटर है वहां पे उनको बोलते हैं, देखो यंग बच्चों को एक काम करो, ये प्रॉब्लम मिल गई है, इसका सोल्यूशन बनाओ, क्रिएट करो, क्रिएट करो उसका सोल्यूशन, और क्रिएट करके उसके बाद अपने देश में पहले डिलीवर करो सब लोगों को।
अपने यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स है उनको डिलीवर करो पहले सोल्यूशन, उनको डिलीवर कर दिया, यहाँ पे सोल्यूशन चल गया, बहुत बढ़िया चल गया, उसके बाद पूरा देश मिलकर इसको दुनिया भर में सेल करता है। इसको बोलते हैं ICDS। पहले क्या करो, पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, उसी का सोल्यूशन यही क्रिएट करो, पहले आसपास आपस में डिलीवर कर दो, फिर पूरी दुनिया में जाके सेल करो। ये टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, बाकी दुनिया में जाकर उसके बाद सेल करते हैं, उसको पेटेंट कर लेंगे, उसके कॉपीराइट ले आएंगे, उसकी रॉयल्टी इनकम जनरेट करेंगे, उसको जाकर के बाहर फ्रेंचाइज आउट कर देंगे, उसको लाइसेंस आउट कर देंगे। तो अपने देश में ये ज्यादा बनाने में झंझट नहीं लेते, अपने देश में दिमाग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया हमारे इंजीनियर, मैन पावर, जितने टेक्निकली स्मार्ट लोग हैं उन पे इन्वेस्टमेंट करो, उनको बोलो तू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर, दुनिया में कोई नहीं कर रहा, उसको यहाँ सॉल्व कराएंगे, पहले यहाँ पे लाकर डिलीवर करेंगे अपने कॉर्पोरेट को, उसके बाद दुनिया भर में बेचेंगे। इजराइल की सफलता की आपको टेक्नोलॉजी की कहानी मैं समझाने के लिए 3 स्टेप बताता हूं, इसको समझेंगे आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। पहले स्टेप में ये क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं पूरी मार्केट के अंदर, उसके लिए ये अपने R&D सेंटर्स में, अपने एकेडमिक सेंटर्स में, अपनी लेबोरेटरीज में, अपनी मैन पावर पे पैसा लगा देते हैं। देखो कि तुम पूरी जान लगा दो, इसका सोल्यूशन निकालो। वो बैठ करके पूरी जान लगाएंगे और उसका सोल्यूशन तैयार करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 जहां पे आते हैं TTO, इनके यहाँ टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब मान लो पहले स्टेप में उसने पेन ड्राइव बना दी कुछ, अब पेन ड्राइव बनाई तो टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, दुनिया के बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को बुलाएंगे, उनको बोलेंगे सुनो भाई, हमारे आदमी ने यहाँ पे इस रिसर्च सेंटर में पेन ड्राइव दिया है, ये आपको बहुत कमा सकती है, बताओ कितने में खरीदोगे हमसे। तो टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन मान लो किसी बड़े कॉर्पोरेट को, मल्टीनेशनल जायंट को बुला करके वो टेक्नोलॉजी उनको बेचेगा जिससे उनको पैसा मिलेगा। अब फिर वो टेक्नोलॉजी अपने देश में पहले सबको बेचेंगे, उसके बाद उसको लाइसेंस आउट करा देंगे पूरी दुनिया में उस कंपनी के माध्यम से। तो अब पूरी दुनिया में हो सकता है R&D वाला आदमी ना बेच पाए, साइंटिस्ट ना बेच पाए, इंजीनियर ना बेच पाए, उसको वो समझ नहीं है, उसको कमर्शियल वायबिलिटी का पता नहीं, उसको वैल्यूएशंस का नहीं पता, उसको स्केलेबल मॉडल्स का नहीं पता, उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो TTO बीच में, टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन, आज हमारे देश में बहुत जरूरी है। देखिए अमेरिका के अंदर हर 10,000 लोगों में से आज लगभग 80 लोग रिसर्च साइंटिस्ट हैं, लेकिन इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पे हर 10,000 लोगों में से 120 लोग रिसर्च साइंटिस्ट, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट को अट्रैक्ट करता है कि मैं यहाँ के पैसा लगाऊंगा, मेरा पैसा ज्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद इतने पे रुका नहीं, ये क्या कहते हैं, VC को बोलते हैं देख भाई VC, दुनिया भर के सबसे बड़ा VC हमारे देश में आओ और हम तुमसे इनकम टैक्स पे नहीं लेंगे, तुम यहाँ नोट छापो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन उस बहाने हो क्या रहा है, बाहर से पैसा आता है और यहाँ का छोटा छोटा स्टार्टअप आगे बढ़ जाता है। अब इन्होंने देश में नई स्कीम निकाली, इन्होंने बोला देख भाई तू एक स्टार्टअप है, अब आप सुनिएगा ध्यान से, तो मैं अपने व्यूअर्स से बोल रहा हूं, तेरे पास बढ़िया आइडिया है? हाँ जी मेरे पास आइडिया है। अच्छा कोई बात नहीं जी, अपने आइडिया को लेके तू आप मेरे सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट कर इस आइडिया को। तो कितना पैसा चाहिए तेरे को आइडिया के लिए? आपने बोला सर मेरे को ना कोई 10 करोड़ रुपए चाहिए, आप दे दो। तो ये सरकार क्या बोलेगी इजराइल की, आओ जी आओ, कोई बात नहीं, अपना आइडिया दिखाओ, आइडिया पसंद आया आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे, लो भाई 10 करोड़ रुपए हमारी तरफ से पकड़ो आप, अब आकर के हमारी सरकार के अंदर इसको इन्वेस्ट करो, हमारे देश को थोड़ा बेनिफिट दो। अगर तो आपका आइडिया चल गया तो आपसे 10 करोड़ रुपए का मात्र इंटरेस्ट ले लेंगे, और कुछ नहीं, केवल इंटरेस्ट ले लेंगे। और अगर आपका आइडिया फेल हो गया और 10 करोड़ रुपए आपसे बर्बाद हो गए तो कोई बात नहीं, बर्बाद हो ही जाते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा, घबराओ मत, उत्साह बढ़ाएंगे, बाउंस बैक करो, अगला आइडिया लेकर के आओ। अब लोगों वहां पे ना क्या है, आदमी के मन में दिमाग में घूम गया है, और जी फेल होने की टेंशन मतलब, खुल के खेलो, सरकार खुद ही पैसा लगा देती है, कहती है 5 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ जो आ रहा है उसको पैसा दे रही है सरकार, कह रही है अगर तुम्हारे पास आइडिया बढ़िया है हमको दिखाओ, हम उसको वैलिडेट करेंगे, अगर तो तुम सफल हो गए तो तुमसे इंटरेस्ट ले लेंगे, और तुम विफल हो गए घबराओ मत, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसे माहौल के अंदर लोग बढ़ रहे हैं, और VC को भी लग रहा है भाई मैं अगर कमाऊंगा यहाँ मुझसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा, तो दुनिया भर का इकोसिस्टम रेडी हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा, मल्टीनेशनल को बोला देखो भाई तुम यहाँ आओ, हम तुम्हारी मदद करते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट तुम आओ, सिस्को, गूगल, एप्पल सब आओ यहाँ पे। क्या करोगे, पहले 2 साल तक ये तुम्हारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह है ना, उसका 40% तनख्वाह हम दे देंगे आप एम्प्लॉयज को। अब क्या होगा, इजराइल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, लगभग 98% एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है अपने देश के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा रिचेस्ट देशों के अंदर आज का नाम आता है, क्यों, मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में नाम आता है। अब माइक्रोसॉफ्ट यहाँ आया और उसने क्या किया जी, पहले 2 साल जितनी भी तनख्वाह, मान लो 100 करोड़ रुपए तनख्वाह है, तो ये कहते हैं पहले 2 साल के 100 करोड़ रुपए में 40 करोड़ रुपए इजरायली सरकार कहती है हम दे देंगे, तुम 60 दो, इजरायली कहती है हम पूरे भी दे सकते थे, लेकिन हम 40% इसलिए देंगे ताकि तुम्हारी भी ओनरशिप रहे, थोड़ा तुम लगाओ थोड़ा हम लगाएंगे, हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं ना। और अपने तो क्या है, यहाँ पे कोई बाहर से आए तो डंडा लेके खड़े हो जाओ बंगाल में, जाबे जाबे हो गए ना, टाटा को निकाल करके भेज दिया गुजरात के अंदर दीदी ने। यहाँ पे लोग, यहाँ पे तो ग्रोथ चाहिए ही नहीं किसी को,
यहाँ तो सबको क्या राजनीति है जी, सबसे पहले तो मेरी जाति के लोग देखो कहां पे जी, मेरी जाति के कौन मुझे ग्रोथ दिलाएगा, नहीं नहीं मेरी जात का है कि नहीं ये बताओ पहले। इसके चक्कर में हमारे देश की सारी ग्रोथ रुकी है। अपनी संस्कृति को चलाए रखने के लिए नियम बहुत बनाते हैं, कहीं अजीबोगरीब नियम है, जैसे आप इनके देश में कहीं सुअर पालना अलाउड नहीं है, अगर सुअर कहीं दिख जाए तो मारा जाएगा, और अगर आपने पाला तो आप जेल जाएंगे, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, अगर कोई भी बच्चा, यहूदी बच्चा, इजरायली बच्चा दुनिया में कहीं भी पैदा हो उसको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। इनकी जो अपनी हिब्रू भाषा है ना 1500 ईस्वी के आसपास पूरी तरह लुप्त हो गई थी, इन्होंने पुनर्जीवित कर लिया, कई संग्रहालय बना लिए इन्होंने अपने संग्रहालय, समझते हैं ना जो उनके म्यूजियम होते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम इस छोटे से देश में है, 250 से ज्यादा म्यूजियम इनके यहाँ एक्टिव है, जहाँ लोग जाते हैं म्यूजियम देखते हैं ताकि इनके कल्चर को कोई भूल ना जाए, ताकि हिब्रू भाषा वापस जीवित हो गई। वैसे उनका 250 किलोमीटर का छोटा सा तट है, उस पर भी इन्होंने 125 बहुत सुंदर बीच बना दिए ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट कर सके। टूरिस्ट बहुत आ रहा है जिनके देश के अंदर, चारों तरफ से अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा भी आपसे प्रश्न है, क्या आप भी चाहते हैं हर देश में इस प्रकार की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, ऐसा इकोसिस्टम पैदा हो? उसके लिए मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। इसी बोललाइन नंबर पर फोन करिए और जानिए कि कैसे हमने इकोसिस्टम तैयार किया। आपको भी चाहिए इंक्यूबेटर, एक्सीलरेटर, आपको भी चाहिए वो वीसी जो आपके साथ पैसा इन्वेस्ट करे, आपको भी चाहिए बढ़िया कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट, वो सब लोग तैयार करके दिए आपको ताकि आप हमारे प्रोग्राम में आकर के ज्वाइन करके पूरे फायदे उठा सके। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, किस देखना चाहते हैं। अगर थोड़ा भी पसंद आए, बहुत मेहनत So, I hope you guys have enjoyed the session. That's it for the day. Thank you so much, guys. Enjoy your day. Take care.